Students, now we are going to start a new chapter, differentiability. What is the meaning of differentiability of a function? First of all, we are going to study differentiability at a point. What is the definition of differentiability at a point? Let a function fx is said to be differentiable function on an open interval a to b. In a given open interval a to b, let c belongs to a to b, then fx is said to be differentiable or derivable at x is equal to c if, this is the important thing, if limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exists finitely. This is the important term. What is the meaning of this limit exists finitely? And this limit is called the derivative or differential coefficient of the function fx at x equal to c, and it is denoted by f dash c, or sometimes it is denoted by dfc, or one more important thing, dfx upon dx at x is equal to c. This is the definition of differentiability at a point. तो हम लोग इस हेडिंग को डालने के बाद डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट डालने के बाद इसको लिखेंगे. मैं अगेन रिपीट करता हूँ इसकी डेफिनेशन को. लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, डिफाइन एन ओपन इंटरवल ए टू बी एंड लेट सी belongs to a to b, then fx is said to be differentiable or derivable at x equal to c if limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exists finitely. This limit is called the derivative or differential coefficients of the function fx at x equal to c and is denoted by f dash c, dfc or dfx upon dx at x equal to c. Thus we can say that f dash c is equal to limit x tends to c fx minus fc whole upon x minus c exist finitely. This is important definition, important system. This is the basic definition of differentiability. If this limit exists at x equal to c, then we can say the function fx is differentiable at x equal to c. We are going to write down this system. Now fx is differentiable at x equal to c, then what we are going to say, limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exist. What is the meaning of existence of limit? Existence of limit is RHL is equal to LHL, means let it is the RHL and it is the LHL. Then we can write down RHL like this, limit x tends to c plus, and formation is here fx minus fc upon x minus c, and this is equal to, because RHL is equal to LHL, this is equal to limit x tends to c minus fx minus fc upon x minus c. If this happens, then we can see that function is differentiable.
अच्छा, तो हम लोग इसको राइट हैंड लिमिट को और कैसे लिखते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 f, x को किससे रिप्लेस करेंगे? c प्लस एच से, माइनस एफ सी होल अपॉन x को किससे रिप्लेस करना है? c प्लस एच से, तो c प्लस एच माइनस सी। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, या फिर रिप्लेसमेंट कर दो तो यहाँ क्या आएगा? c माइनस एच माइनस अपॉन दिस। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस एच माइनस एफ सी होल अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस एच माइनस एफ सी होल अपॉन माइनस h. This is called RHL of this function, and in this chapter this is called RHD. This is called RHD, right hand derivative, and this is called LHD, left hand derivative. Means it is the right hand derivative of fx at x equal to c, and it is left hand derivative of fx at x equal to c, and generally these system are represented by f dash c minus for LHD and c plus for RHD. Then you can say if f dash c plus is equal to f dash c minus, then function is differentiable at x equal to c. Got it? Understand what is the right hand limit and what is the left hand limit, and what is the notation of right hand and left hand limit. This is all about differentiability of a function at a point. अच्छा, हम कब कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? हम फंक्शन को यदि हमें मना करना कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, वहाँ पे जो RHD है और वो LHD है वो इक्वल नहीं होगा. देन वी कैन से फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें फ़िलहाल हम क्या ध्यान देंगे? हम RHD निकालेंगे, LHD निकालेंगे और देखेंगे कि वो RHD LHD के इक्वल है या नहीं है. इक्वल है तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसके बेस्ड पर. ठीक है, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, fx इज इक्वल टू, fx में ले लिया x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3. ये डिफाइन कब है? इफ़ x इज़ लेस देन 2, और ये डिफाइन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई का मतलब है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है कि दैट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2. तो अल्टीमेटली जो RHD LHD हैं वो इक्वल नहीं होंगे. तो RHD को लिखो जरा. RHD क्या थी? RHD की डेफिनेशन क्या है? लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस एच, जिस पॉइंट पे बात करते हैं, माइनस एफ सी अपॉन एच. तो उसको निकालेंगे सपोज, तो लिमिट h टेंस टू 0, c की वैल्यू क्या आ गई? 2, तो 2 प्लस एच माइनस f2 upon h. What is the value of 2 plus h? The value of 2 plus h comes here, means it is 2 times 2 plus h minus 3, and value of f2, you can find the value of f2 from here. It is 4 minus 3 is 1, means minus 1 whole upon h. Now simplify it. Limit h tends to 0. It is the 4 plus 2h minus 3 minus 1 upon h. Now simplify it, it is cancel out, the value is 2, means your RHD is 2. अब एक खास बात बताएंगे, चलो धीरे धीरे बताएंगे, है ना. अभी फ़िलहाल ये इस प्रोसेस से भी करो. LHD कितनी होगी? LHD होगी लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस एच माइनस एफ सी
अपॉन माइनस एच. नाउ फाइंड द वैल्यू. लिमिट h टेंस टू 0. c माइनस एच कहाँ रखेंगे? ऊपर. तो c माइनस एच माइनस 1. f1 की वैल्यू अल्टीमेटली, c की वैल्यू 2 है, सॉरी f2 की वैल्यूज कितनी आएगी? व्हाट इज द c? c इज द 2, तो 2 को रख ही देते हैं. f2 की वैल्यू कितनी है? 1 है. अपॉन में माइनस एच. नाउ सिंप्लीफाई इट. इट इज़ द 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच. दिस इज कैंसिल आउट and it is 1. Means RHD is not equal to LHD, then we can say the function is not differentiable. तो हम इसको लिख देंगे it is not differentiable at x equal to 2. बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ एक्स गिवन है और एफ एक्स जो गिवन है वो एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 upon x when x is not equal to 0 and it is 0 if x is equal to 0. And question is that if it is differentiable at x equal to 0, then you have to prove that f dash 0 is equal to 0. तो f dash 0 की वैल्यू निकालनी है. तो फाइनली डिफरेंशियल है, तो मैं f dash x की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपसे कहूँ तो f dash x की वैल्यू किसकी इक्वल है? वो उसकी RHD और LHD में जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन है ये. और जब फंक्शन डिफरेंशियल है तो RHD LHD कुछ भी निकालेंगे वो इक्वली आएगी और उसके करस्पॉन्डिंग हम बात कर लेंगे. तो सबसे पहले बताओ क्या निकालें? RHD निकालें. RHD निकाल देते हैं. LHD का मन करेगा तो निकालेंगे. तो फार्मूला क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f 0 पर फाइंड कर रहे हैं तो 0 प्लस एच माइनस f0 होल अपॉन h. What is the 0 plus h? The value of 0 plus h is h square times sine 1 upon h minus f0 is 0 upon h. Now simplify it. It is h times sine 1 upon h. And as we know, this is the oscillating function. And minus 1 to 1. Do you know? And h is tends to 0, this system is going to 0, that's why you can say RHD is equal to 0, means you can say f dash 0 is equal to 0 because function is differentiable. और हम फाइंड भी कर सकते हैं. अभी सीखना है तो सीखने के लिए भी हमें फाइंड करना चाहिए. बेसिकली हमें सब कुछ सीखना चाहिए कि भाई f dash 0 का मीनिंग क्या है ना. अब f dash 0 का मतलब क्या है कि f dash x निकालना है एट x इक्वल टू 0, इस पे निकालना है. ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसमें यदि क्वेश्चन पूरा ऐसे बोल दे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्रूव दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, तो डिफरेंशिएबल बोल दिया तो आपको अब RHD LHD दोनों निकालने पड़ेंगे. तो मैं एक बार RHD निकालता हूँ. लिमिट h टेंस टू 0. अब वही RHD की बात अब किस पे निकालना है? ये 1 पे कह रहे हैं तो लिख दो भाई 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h. और सपोज तुम इसकी LHD भी यहाँ साथ साथ निकाल सकते हो तो निकाल दो, क्योंकि क्वेश्चन सब्जेक्टिव है जिसमें कह रहा है कि पहले आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है. तो मैं कहूँगा कि भाई फंक्शन की जो RHD है और LHD है वो कैसी है? इक्वल है, तभी तो मैं कह पाऊँगा डिफरेंशिएबल है. तो 1 प्लस एच भी मुझे यहीं रखना है. तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f1 पे वैल्यू 1 आएगी अपॉन h. लिमिट h टेंस टू 0. इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h. दिस 1 इज कैंसिल आउट. लिमिट h टेंस टू 0. अगेन सिंप्लीफाइड. तो लिमिट का देखो काम अभी तक आ रहा है. ये h प्लस 2 बचेगा अपॉन h. इट इज़ कैंसिल आउट. लिमिट h टेंस टू 0. दिस इज़ द 2. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0. f1 माइनस एच मीन्स 1 माइनस एच का होल स्क्वायर. 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा अपॉन माइनस एच. फिर स्क्वायरिंग कर दो. 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस एच. अगेन सिंप्लीफाई इट. ऊपर से माइनस एच कॉमन ले लो. इट इज़ द माइनस एच प्लस 2 होल अपॉन माइनस एच. ये कैंसिल आउट. वैल्यू रखोगे अगेन 2 आ जाएगा. तो RHD LHD इक्वल आ गई. इक्वल आ गई तो बस तुमसे पूछ रहा है कि f डैश 1 क्या है. तो उससे बोलो इतना सब मेहनत की हमने, f डैश 1 अब हमारा कितना है? 2 है. दिस इज कॉल्ड द बेसिक ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी.
तो अच्छा क्वेश्चन यदि लेना हो तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में लिखा है एक्स इंटू ई टू पावर में जो फंक्शन है वो खतरनाक है, वो -1 अपॉन मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ये है, when x is not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0। इसकी डिफरेंशियबिलिटी मुझे 0 पे चेक करनी है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो भाई डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो चाहो तो फंक्शन को पहले मॉड ओपन करके सिंपल तरीके से लिख लो, फिर उसकी RH/D और LHD फाइंड कर लेंगे। तो वही है x ग्रेटर दैन 0 पर मॉड कैसा होगा, तो 1 अपॉन एक्स ओपन हो जाएगा, मीन्स इट इज़ एक्स ई टू पावर -2 अपॉन एक्स हो जाएगा, यू कैन से, एंड x लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, ये माइनस ओपन होगा तो x इंटू ई टू पावर 0 1 होता है तो x ही बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स। और जब x कितना है इक्वल टू 0 है तो 0 है, तो ये फंक्शन हमने थोड़ा सा ब्रेक कर लिया है ना। तो इसको ब्रेक करने के बाद अब जैसे कोई कहे कि भाई RH/D बताओ, तो RH/D इसको बता देंगे। RH/D कहाँ से आएगी, अब RH/D की डेफिनेशन है लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। सिंप्लीफाई करेंगे 0 प्लस h यहाँ रखना है, तो h ई टू पावर -2 अपॉन h, f0 की वैल्यू कितनी है 0 है, अपॉन h है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा अल्टीमेटली ये 0 में जाएगा, क्योंकि ई टू पावर माइनस इन्फाइनेट है, ई टू पावर माइनस इन्फाइनेट कहाँ जाता है 0 जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि RH/D कितनी आ गई इसकी 0 आ गई, गॉट इट। अब हम लोग LHD की बात कर लेते हैं, LHD कहाँ से निकालेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h वाला सीन अपने पास ये लिखा हुआ है -f0 अपॉन -h, तो 0 माइनस h से क्या आ जाएगा, ये तो -h आ जाएगा, -f0 0 है अपॉन -h, फाइनली इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज RH/D इज़ नॉट इक्वल टू LHD, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली अब मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी का जो बेसिक नट सेल है फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको हमेशा याद रखना कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन f(x) एट x इक्वल टू c, इसकी जो फंडामेंटली बात है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि लिमिट x टेंस टू c, इसको लर्न करो आप लोग, f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगी कैसी, फाइनाइटली। अब इतनी एग्जिस्ट करा ली तुमने तो तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब इसकी RH/D LHD के इक्वल कर लो। अब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हम लोग करेंगे, तो बेसिक फंडामेंटल में इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि RH/D और LHD होता क्या है और डिफरेंशियबिलिटी की जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है। तो आई थिंक इट इज़ ओके।